Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. In last lecture, we were studying about the analysis of Marquesan state. In that we first point we studied that is was the material base of the state is relative scarcity. Then we studied the state is the product of society at a certain stage of development. Then third point is state is controlled by the economically dominant class. In general, the state is controlled by the economically dominant class, enabling it to maintain its control over the exploited class. As the state arises from the need of hold class agnotism in check, but as it arises at the same time in the midst of these classes, it is as a rule the state of the most powerful economically dominant class, which through the medium of state become also the politically dominant class and thus acquire new means of holding down and exploiting the oppressed class. Second point was that the state is a part of superstructure of society. Marx and Engels analyzed human society as divided into a material base and a superstructure that rests on it. The base is made up of the instruments of production, that is the machine, tool, raw material, the social class chiefly exploiting, and the labor class of a particular society and the relation between these classes. The next point is the mode of production. The nature of the material base of a given society, or what Marx and Engels called its mode of production, determines the nature of the superstructure. By extension, the development of the base determines the evolution of the state. He was led by my studies to the conclusion that Hegel relations as well as form of the state are rooted in the material condition of life in the social production which men carry on. They enter into definite relations that are indispensable and independent of their will. This relation of production corresponds to be a definite stage of development of the material power of production. Then sixth point is the state is the instrument of the economically dominant class. See, although the state is usually the instrument of the economically dominant class, sometimes conflicting class balance each other such that the state becomes somewhat independent. By way of exception, however, periods occur in which the warring class balances each other so nearly that the state power as ostensible mediator acquires for the movement a certain degree of independence of both. Then moving towards the seventh point. In most states in history, rights were allotted according to wealth. See, in most of the historical states क्या थे, rights of the citizen were apportionate according to their wealth. मतलब जितनी ज़्यादा wealth उतने ज़्यादा आपको rights मिले जाते थे. In democratic republic state, capitalist class exercise its power indirectly. See, the highest form of the state, the democratic republic, officially knows nothing any more of poverty distinction. In its wealth exercise its power indirectly, but all the more surely. On the one hand, in the form of direct corruption of officials, on the other hand, in the form of alliance between government and stock exchange, and lastly, the possessing class rulers directly through the medium of universal suffrage. State is compelled to take over and manage every greater proportion of the economy. See, as capitalism develops and the effect of its period's crisis make themselves feel, the state is compelled to take over and manage ever changing proportion of the economy. See, as capitalism develop, जैसे जैसे capitalism develop हो रहा है, efforts और effects भी क्या हो रहा है, उसके change हो रहे हैं यहाँ पे. In effect, the capitalist state exploited the capitalist. Now about chief strategic task. The chief strategic task of the working class in the proletarian revolution is to seize state power, to raise itself to the position of ruling class. The working class smashes the capitalist state and builds its own, the dictatorship of the proletarians in its place. Now we will start with the 11th point. That is the dictatorship of the proletarian is not a state in the proper sense of term. See, it is the
प्रोलेस्टिन ऑर्गेनाइज्ड एज अ रूलिंग क्लास। यहाँ पे क्या हुआ है, ये प्रोलेस्टिन इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड एज अ रूलिंग क्लास। अनलाइक अदर स्टेट इन हिस्ट्री whose rule was to enable minorities to suppress majority, the dictatorship of the proletarian is the instrument of the vast majority to suppress the tiny exploiting minority. Its establishment represents victory in the battle for democracy. See, अब क्या है, इट इज़ द प्रोलेस्टियन ऑर्गेनाइजेशन, ये रूलिंग क्लास है। जैसे अदर स्टेट्स इन हिस्ट्री अपन देखते हैं whose rule was to enable minority to suppress majority. The dictatorship proletarian is the instrument of majority to suppress the tiny exploiting minority. मतलब जो ये बड़े लोग छोटे लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, लेबर क्लास को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, वो ये जो लेबर क्लास है उन्होंने एक डिक्टेटरशिप बनाई एंड दे सेव्ड देमसेल्फ. Its establishment represents victory in the battle for democracy. The dictatorship are to exploit the capitalist. The main task of the dictatorship are to exploit the capitalist, those whose property has not already been nationalized. See, the main task of dictatorship क्या था, are to exploit the capitalist, suppress capitalist resistance and develop the nationalized means of production as rapidly as possible in order to overcome relative scarcity and shorten the work day, thus allowing all workers to participate in the affair of society. Now we'll start with this is the last point of our topic, that is the criticism of Marxian state. Criticism of Marxian state explains the following point. Marx and Engels foreseen that the proletarian class through protested class struggle and permanent revolution would succeed in arresting capitalist state and establish its overall supremacy, which would finally lead to the creation of a communist society. See, मार्क्स एंड एंजल क्या बोल रहे हैं, ये जो प्रोलेस्टियन क्लास है, हाँ, थ्रू प्रोटेक्टेड क्लास स्ट्रगल, ये परमानेंट रिवॉल्यूशन था और ये हमेशा सक्सेस ही रहा है अगेंस्ट कैपिटल स्टेट एंड एस्टेब्लिशिंग इन सुप्रीमेसी over which would finally lead to the creation of communist society. These are two predictions. One is the bourgeois state would one day be seized by the working class. See, यहाँ पे दो predictions की बात कर रहे हैं ये लोग. कौन से दो predictions की बात कर रहे हैं? एक तो है ये bourgeois state, मतलब ये जो बड़े लोग हैं one day be seized by the working class. वो लोग एक दिन पूरे वर्किंग क्लास के अंडर चले जाएंगे, मतलब वर्किंग क्लास उनको डोमिनेट करेंगे. द अदर इज कम्युनिज्म वुड टेक द प्लेस ऑफ कैपिटलिज्म. और दूसरा क्या है, द अदर इज कम्युनिज्म जो इट वुड टेक प्लेस ऑफ कैपिटलिज्म. ओनली इन रशिया द वर्किंग क्लास कैप्चर्ड पावर. सिर्फ रशिया में ही ऐसा था, ये जो वर्किंग क्लास था इट कैप्चर्ड पावर. देयर वेर मोर मैच्योर्ड कैपिटलिस्ट स्टेट सच एज, सी, रशिया में ही वर्किंग क्लास ने सारा पावर ले लिया था, एक उधर ही सक्सेसफुल था हाँ उनको. देर आर मोर मैच्योर कैपिटलाइज स्टेट सच एज अपार्ट फ्रॉम रशिया, और भी जहाँ पे कैपिटलिस्ट स्टेट्स थे लाइक यूनाइटेड स्टेट, ब्रिटेन, फ्रांस एंड जर्मन. सारे ये यूरोपियन कंट्री उधर के यही है, यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मन. In these countries, working class has not been able to seize political power. See, ये जो चार कंट्रीज अपन बोल रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन, फ्रांस एंड जर्मन, इन कंट्रीज में क्या है, वर्किंग क्लास दे वर नॉट एबल टू गेट द पॉलिटिकल पावर. वहाँ पे उनको कोई भी पॉलिटिकल पावर नहीं मिली थी. सो द फर्स्ट कैलकुलेशन रिमेन्स अनसेटिस्फाइड. इसकी वजह से क्या हुआ है, ये जो अपना फर्स्ट कैलकुलेशन था इट रिमेन्स अनसेटिस्फाइड. In the second prediction, it can simply be observed that there is doubt about to what extent Russia had thrived in establishing socialism, not to speak of communism. See, in the second prediction क्या है, it can simply be observed. Second prediction में क्या है, आप सिंपल से ऑब्जर्व कर सकते हो कि बाबा यहाँ पे कि डाउट है कि बाबा रशिया में कितना एक्सटेंड हुआ होगा ये सोशलिज्म एंड ऑल. कम्युनिज्म के बारे में तो अपन रशिया में बात ही नहीं कर रहे, वी आर स्पीकिंग जस्ट अबाउट द सोशलिज्म.
The first socialist state in the world shrunken in 1991. See, first socialist state पूरे वर्ल्ड में कौन सा था? shrunken in, that was in the year 1991. Communist Party of China claims that China is a socialist state. See, अब ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना में, राइट, अभी चाइना में उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी थी, वो जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो क्लेम कर रही है कि बाबा दे वेर द फर्स्ट, दे वेर द चाइना में क्या था? सोशलिस्ट स्टेट था, उस वक्त चाइना में सोशलिस्ट स्टेट था. बट उनका एक्सेप्टेंस ऑफ मार्केट इकोनॉमी कास्ट डाउट ऑन दैट क्लेम. बट जो चाइना क्लेम कर रही है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, वो जो क्लेम करे कि चाइना सोशलिस्ट स्टेट था, बट ये एक्सेप्ट करना आज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनका जो मार्केट इकोनॉमी है वो उसको मार्केट इकोनॉमी को देखते हुए ये उनका क्लेम करना गलत है, ऐसा माना जाता है. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, मार्क्स एंड एंगल्स एंटिसिपेटेड दैट स्टेट वुड वीकन अवे. सी, मार्क्स एंड एंगल्स ऐसा माना जा रहा है कि वह स्टेट वीक हो सकते हैं. द ह्यूज स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मर यूनियन सोवियत यूनियन हैज़ falsified this tall claim of Marx and Engels. See, the huge state structure of former Soviet Union. See, ये जो huge state structure of former Soviet Union क्या है? Has falsified this tall claim of Marx and Engels. The Soviet state was as powerful as the Britain. See, अपन ने हिस्ट्री में वगैरह पढ़ा था कि ये सोवियत स्टेट, सोवियत यूनियन कितना पावरफुल था. लाइक ये लोग तो सुपर पावर के नाम से जाने जाते थे. उस वक्त दो ही सुपर पावर थे, एक तो शायद यूएस था और सेकंड वाज द सोवियत यूनियन था, राइट. तो कितना वो पावरफुल था उस वक्त. द सोवियत यूनियन वाज as powerful as Britain, United States during the prime of Cold War. See, ये लोग भी वही बोल रहे हैं. कोल्ड वॉर के वक्त क्या था? सोवियत यूनियन भी बहुत ज़्यादा पावरफुल था. जितने पावरफुल ये ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट थे, उतना ही पावरफुल ये सोवियत यूनियन था. इवन आफ्टर द रिसेशन ऑफ कोल्ड वॉर. सी, जब ये कोल्ड वॉर भी और रिसेशन, कोल्ड वॉर, आफ्टर द रिसेशन ऑफ कोल्ड वॉर, रिसेशन यानी क्या? जहाँ पे एवरीथिंग सब नीचे 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 आता रहता है, लाइक आपकी इकोनॉमी एंड ऑल, एवरीथिंग कम्स डाउन एंड ऑल. जैसे अपने इंडिया में भी रिसेशन था, एक पीरियड था, राइट, जहाँ पे अपने पास कुछ भी, अपने पास ना फॉरेन करेंसी थी बहुत ज़्यादा, ना अपने पास सारा रिजर्व्स भी कुछ भी नहीं था. इनफैक्ट जब मैं कॉलेज में थी ना, तभी भी एक रिसेशन का पीरियड आया था. लाइक बहुत से लोगों को जॉब पर से निकाल दिया गया था, आगे फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं कुछ भी नहीं पता था. बट धीरे धीरे क्या हो गया, ये रिसेशन सारा सेटल डाउन हो गया था. एवरीथिंग वेंट ऑन स्मूथली देयर आफ्टर. तो ये इवन आफ्टर द रिसेशन ऑफ कोल्ड वॉर, द सोवियत स्टेट वाज ऑब्वियसली द सुपर पावर. ये जो सोवियत स्टेट था ये ऑब्वियसली द सुपर पावर था, अलॉन्ग विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. सी, मैंने बोला था ना, उस वक्त पूरे वर्ल्ड में दो सुपर पावर थे, एक तो यूनाइटेड स्टेट और एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था. सॉरी, एक तो सोवियत स्टेट एंड सेकंड वाज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो यहाँ पे भी वही बोल रहे हैं ये लोग, लाइक सोवियत स्टेट एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दोनों सुपर पावर थे. चाइना इज अनदर सोशलिस्ट स्टेट एंड टुडे इट इज़ अ ह्यूज इकोनॉमिक पावर. सी, चाइना इज़ अनदर सोशल स्टेट. चाइना एक दूसरा सोशलिस्ट स्टेट था एंड ये एक आज बहुत बड़ा इकोनॉमिक पावर है. The orthodox Marxists interpreted the weathering away of state and want to establish that Marxist idea is correct. It remains that it is no longer a logical concept. See, although the orthodox Marxist interrupts, वो इंटरप्ट करके बोल रहे हैं ये जो वितरिंग, ये जो स्टेट के बारे में, ये जो आप एस्टेब्लिश दैट मार्क्सिस्ट आइडिया इज करेक्ट, इट रिमेन्स दैट इट इज़ नो लॉन्गर अ लॉजिकल कंसेप्ट. भले ही ये मार्क्सिस्ट का थॉट आइडियोलॉजी सही रहेगा, बट क्या है, आज वो लॉजिकल कंसेप्ट नहीं है. मार्क्स एंड एंगल्स बिलीव्ड दैट
only the establishment of the autocracy of the proletariat would be able to liberate the working class. See, Marx and Engels believed that मार्क्स एंड एंगल्स क्या कर रहे हैं, वो बिलीव कर रहे हैं कि दैट ओनली द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑटोक्रेसी ऑफ द प्रोलेस्टिन वुड बी एबल टू लिबरेट द वर्किंग क्लास. टुडे द वर्किंग क्लास इज नॉट ओनली जॉइन इट्स बार्गेनिंग पावर हैज़ इम्प्रूव सेवरल टाइम्स. सी टुडे क्या है, आज क्या है, ये जो वर्किंग क्लास है इज़ नॉट ओनली जॉइन इट्स बार्गेनिंग पावर. आज ये वर्किंग क्लास का क्या है, सिर्फ बार्गेनिंग पावर ही नहीं बढ़ चुका है बट और बहुत सी चीज़ों में उनका इम्प्रूवमेंट हुआ है. फ्रॉम टाइम टू टाइम द वर्कर्स डिमांड्स हैव बीन मेट बाय द कैपिटलिस्ट. सी फ्रॉम टाइम टू टाइम क्या हुआ है, ये वर्कर्स डिमांड हैव बीन मेट बाय द कैपिटलिस्ट. इट कैन बी डिडक्टेड दैट द वर्कर्स आर स्टिल browbeaten, but it is also a fact that the extent of exploitation much less than it was in Marx's time. See, अभी अपन ये तो बोल सकते हैं इट कैन बी डिटेक्टेड दैट आज भी वर्कर्स को अपन एक्सप्लॉइट करते ही है बट उनका एक्सप्लॉइटेशन कुछ हद तक कम हो चुका है. जैसे मार्क्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा था, उस टाइम से आज कंपेयर किया तो बहुत कम है. टुडेज वर्कर्स आर मोर इंटरेस्टेड so far as the agitation is concerned in democratic or constitutional method than in the revolutionary method. See, today workers are more interested so far as the agitation is concerned, फिर वो democratic रहो या constitutional method than in the revolutionary method. The working class does not think of capturing state power for the fulfillment of the legislative demand. See, अब ये जो वर्किंग क्लास है ये पूरा स्टेट अपने कब्जे में करेंगे और अपन सारा रूल करेंगे, इसके बारे में नहीं सोचते हैं. वो अपनी डिमांड पूरी करने के लिए वो इतना ज़्यादा नहीं सोचते हैं. इट सिट्स एट द बार्गेनिंग टेबल एंड सेटल्स ऑल द डिस्प्यूट. फिर वो मीटिंग वगैरह करते हैं मैनेजमेंट के साथ एंड ऑल. इट सिट्स एट द बार्गेनिंग टेबल एंड सेटल ऑल द डिस्प्यूट. द एटीट्यूड ऑफ द वर्कर and that of the capitalist have gone through major changes during the last century. See, now ये क्या है, अब ये attitude of workers and that of the capitalist, it have gone through a major changes. अभी बहुत ज़्यादा changes हो गए हैं during the last century, that is from 1900 to 1999. Both the workers and capitalists have decided to avoid the conflicting situation and both feel that all the dispute can be politely settled. See, both the workers and capitalists दोनों अवॉइड करना चाहते हैं कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन. क्यों? क्योंकि दोनों को भी झगड़ा फसाद कुछ नहीं चाहिए. दे वांट टू सेटल एवरीथिंग इन अ पोलाइट वे एंड दे वांट टू सेटल एवरीथिंग इन अ प्रॉपर वे विदाउट एनी रिवोल्यूशन, विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट. बट इन मार्क्स टाइम the capitalists took stubborn attitude towards the workers and later retailed it. See, but in Marx time क्या हो गया, the capitalists took stubborn attitude. What they did, but Marx के टाइम पे क्या हुआ, ये कैपिटलिस्ट जो थे they were बहुत stubborn थे और उनका attitude towards worker even that was also very bad. In this way conflict increased. So this was the one of the major reason for increasing the conflict over here. There is a disagreement about the instrumentalist approach and the relative autonomy approach. See, there is a disagreement between the instrumentalist approach and the relative autonomy approach. If analyzed the state structure of modern capitalist state, it can be established that the state acts on all important matters independently. See, if analyzed, अगर आप एनालाइज करो ये जो स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न कैपिटलिस्ट स्टेट क्या है, इट कैन बी एस्टेब्लिश दैट द स्टेट एक्ट्स ऑन ऑल इम्पॉर्टेंट मैटर इंडिपेंडेंटली. स्टेट कैसे काम करता है, स्टेट अपना सारा काम इंडिपेंडेंटली ही काम करता है. बराबर है ना. स्टेट किसी पर डिपेंड रहता है क्या, नहीं रहता. स्टेट कंट्रोल्स ऑल इट्स एक्टिविटी इंडिपेंडेंटली. इट neither controls नॉट डिक्टेड बाय अ डोमिनेंट क्लास. सी, जो भी डोमिनेंट क्लास है वो स्टेट को गाइडलाइन पे नहीं देती, वो स्टेट को कुछ बोलती भी नहीं है, ना ही वो स्टेट पे कंट्रोल करती है. यहाँ पे देयर मे बी एन इमोरल नेक्सस
between the economically powerful class and the state. See, अब क्या हो गया, अगर ये लोग बड़े अब अपर क्लास, ये जो इकोनॉमिकली पावरफुल क्लास स्टेट में इंटरफेयर करने लगे तो क्या होगा, एवरीथिंग वुड बी उनके हिसाब से होगा. बट bureaucracies, judiciary and legislature act in accordance with certain fixed principle laid down in the constitution of law book. See, but bureaucracies क्या है, but bureaucracies, judiciaries and legislature act in accordance with the certain fixed principle. ये सारे क्या है, आज अपने जुडिशरी लेजिस्लेचर क्या है, इट एक्ट्स अपॉन सर्टन फिक्स प्रिंसिपल दैट आर रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बुक. अपने लॉ बुक में जो लिखा है, जैसा लिखा है उसके हिसाब से ये काम करते हैं. द स्टेट गिव्स प्रायोरिटी टू द जनरल इंटरेस्ट ऑफ द बॉडी पॉलिटिक्स. सी, ये जो स्टेट क्या रहता है, द स्टेट गिव्स प्रायोरिटी टू द जनरल इंटरेस्ट ऑफ द बॉडी पॉलिटिक्स. मैनी अपोनेंट्स इंडिकेट दैट मार्क्स थ्योरी ऑफ स्टेट इज नॉट आइडल. सी, बहुत से लोग क्या बोलते हैं, ये मार्क्स थ्योरी क्या है, इट इज नॉट आइडल. The Prolestin would capture state power and would bring everything of the capitalist state under its supreme authority is nothing but a utopia thought. See, ये जो the Prolestins क्या है, ये जो अब बूढ़े लोग हैं, जो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग सारा पावर क्या करेंगे, अपने पास ले लेंगे. और क्या है, and would bring everything of the capitalist under its supreme authority. और सब कुछ अपने हाथ में ले लेंगे और वो खुद ही दे वुड हैव अ सुप्रीम अथॉरिटी. इज नथिंग बट अ यूटोपिया थॉट. द स्लेजर ऑफ स्टेट पावर इज डेफिनेटली नॉट एन ईजी टास्क. सी, ये जो स्लेजर ऑफ स्टेट पावर क्या है, ये इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क. द वर्कर्स आर यूनाइटेड, नो डाउट. तो वर्कर्स के पास यूनाइट होने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था. बट द कैपिटलिस्ट आर मोर यूनाइटेड. बट कैपिटलिस्ट भी क्या हो गए, वो भी ज़्यादा यूनाइटेड हो गए. एंड वुड फाइट स्ट्रांगली टू रेजिस्ट ऑल अटेम्प्ट्स ऑफ वर्किंग क्लास टू कैप्चर द स्टेट पावर. सी, और ये क्या हो गए, ये कैपिटलिस्ट भी स्ट्रांगली रेजिस्ट करने लगे. वो भी स्ट्रांगली खड़े थे ताकि वो वर्किंग क्लास को अपने हाथ में ही, अपने अंडर ही रख सके और वो सारे पावर अपने हाथ में ही रहने दें. बट अ मेजर पार्ट ऑफ दिस थ्योरी ऑफ स्टेट stands on the concept that working class through class struggle and revolution would seize state power. See, but major part of this theory of state stands on the concept that ये जो working class thought क्या है, class struggle and revolutionary would seize state power. Marx theory of state has other limitation. See, Marx theory of state के क्या है, और भी limitation है. He has said that the classless society will have no state, it will weaken away. See, मार्क्स की थ्योरी क्या बोलती है, वो क्लासलेस सोसाइटी बोलता है. और क्लासलेस सोसाइटी में क्या होगा, कोई स्टेट नहीं होगा और वीक हो जाएगा. इफ दैट वॉज द केस देन विच अथॉरिटी विल सेटल द डिस्प्यूट इन सच ए सोसाइटी. अगर क्लासलेस सोसाइटी हो गई और स्टेट ही नहीं रहेगा, तो अगर किधर डिस्प्यूट होते हैं तो वो सोसाइटी में डिस्प्यूट कुछ ना कुछ तो चलते रहते हैं. तो ये डिस्प्यूट सारे कौन सेटल करेगा, किसके पास इतनी अथॉरिटी रहेगी कि वो सारे डिस्प्यूट सेटल करें इन द सोसाइटी में. द क्लासलेस सोसाइटी विल नॉट बी ऑक्यूपाइड बाय गॉड्स. और ये जो क्लासलेस सोसाइटी क्या, वो क्या भगवान आके चलाएगी, नहीं. कॉन्फ्लिक्ट्स इन क्लासलेस सोसाइटी मस्ट अपीयर एंड फॉर देयर सेटलमेंट अ सोवियत बॉडी इज इसेंशियल. सी, कॉन्फ्लिक्ट्स इन क्लासलेस सोसाइटी मस्ट अपीयर, एक रहना चाहिए, और उसके लिए फॉर द सेटलमेंट अ सोवियत बॉडी इज इसेंशियल. मार्क्स थ्योरी ऑफ स्टेट डिड नॉट गिव सोल्यूशन टू सच केस. मार्क्स थ्योरी ऑफ स्टेट के पास इस सवालों का कोई भी सोल्यूशन नहीं था. इट इज इवेल्युएटेड दैट मार्क्स हैड ओपिनियन दैट द बोर्गेस was basically using the modern state for enhancing the lifestyle and prospectus of capital class of the society. See, मार्क्स थ्योरी अगर इवेल्युएट करो तो क्या है, मार्क्स का ओपिनियन क्या था कि जो बोर्गेस थे दे वर यूजिंग मॉडर्न स्टेट. वो लोग धीरे धीरे मॉडर्न हो रहे थे ताकि अपना लाइफस्टाइल बढ़ा सके एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ कैपिटल क्लास ऑफ द सोसाइटी.
One of the famous quote from the Communist Manifesto, Marx and Engels state, the executive of the modern state is but a commitment for managing the common affair of the whole bourgeoisie. See, the executive of the modern state क्या है? Is but a commitment for managing the common affairs of the whole bourgeoisie. Marx also supported that communism was the best resolution for such a capital society. See, मार्क्स ने क्या है, मार्क्स सपोर्ट करता है कि ये जो कम्युनिज्म है इट वॉज द बेस्ट रिजोल्यूशन फॉर द सच सोसाइटी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी. द कॉन्फ्लिक्ट अमंग द क्लासलेस keeps increasing as the capitalism in the state develops, since the interest of the workers are frustrated by the state in capitalism. See, अभी जो कॉन्फ्लिक्ट अमंग द क्लासेस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग जैसे जैसे कैपिटलिज्म डेवलप होता है. Additionally, capitalism also facilitates the bourgeoisie to give concession to the proletariat. See, कैपिटलिज्म में क्या है, ये बोर्गलिज्म को क्या मिलता है, कंसेशन भी मिलता है. इन सिनेरियो वेयर देयर इज अ सोशल अनसर्टेनिटी, जहाँ पे सोशल अनसर्टेनिटी है. द वेलफेयर स्टेट ऑफ द स्कैंडिनेविज्म रीजन हैड सिमिलर व्यू टू द मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ द स्टेट. सी, ये जो वेलफेयर स्टेट ऑफ द स्कैंडिनेविज्म रीजन है, even they had the similar view to the Marxist view of the state. Concession such as unemployment benefit, free education and free health checkup and pension scheme are given by the workers to the proletariat in certain Scandinavian state. See, workers को concession दिया जाता था. concession जैसे कि unemployment benefit, अगर आपको अन्य काम से निकाल दिया जाएगा तो आपको क्या बेनिफिट दिया जाएगा, तो आपको 1 महीने का सैलरी पे करना पड़ता है ना, ताकि आप नया जॉब ढूंढ सको तब तक. फिर फ्री एडुकेशन दिया जाता है, फ्री ट्रेनिंग दिया जाता है उनको, और उनका टाइम टू टाइम हेल्थ चेकअप भी किया जाता है. लाइक एवरी 3 मंथ्स, अभी कौन से फैक्ट्री में काम कर रहे हो आप, क्या फैक्ट्री है आपकी, उस पर आपका हेल्थ चेकअप कब कब होगा वो डिपेंड रहता है. देन पेंशन स्कीम, अगर आपका रिटायरमेंट, आप काफ़ी सालों से वहाँ पे काम कर रहे हो, आप रिटायरमेंट होने वाले हो, तो आपको पेंशन स्कीम भी मिलता है. कौन देता है, ये जो हायर क्लास के लोग हैं, जो ओनर्स हैं, वो लोग अपने एम्प्लॉयज़ को, लेबर्स को ये सारे सुविधा दे रहे थे इन द स्कैंडिनेवियन स्टेट्स. वी हैव एंडेड आवर टॉपिक हियर. इन फैक्ट वी हैव कंप्लीटेड आवर बुक वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का. ये बुक अपना कंप्लीट हो गया है. इन नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विद द एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेल मी ऑन माई मेल ID. थैंक यू.